in a very short notice, Principal Rasik Gupta of Darshan Academy Dasuwa has given us time to host a webinar in our school. It is regarding during the lockdown, how to manage the work, how to perform efficiently, how to boost up our morale during the lockdown, and what are the challenges and what are the opportunities we can learn from this lockdown. I welcome Mr. Rasik Gupta, Principal Darshan Academy. He is the most vibrant principal as well as admin of near about 400 principals all over pan India. We welcome you, sir, in this webinar. Thank you very much. Yes, over to sir. So what I am here to talk to all of you is that all of us know that we are going through a very tough phase of our life. COVID-19 crisis has hit almost everybody, every business, every occupation, every job sector in the world very hard. But I do believe that schools are the hardest hit. Almost everybody seems to be against the schools at this time. And reason is the short-sightedness of some people. Some, I won't call them even social elements, they are anti-social elements who are trying to instigate everybody against the schools. The people who are instigating parents, they have tried to get them down to that level that everybody has started saying no school, no fee. Means till the time students are physically not present in the school campus, no fee till that time. They are not ready to accept the hard work which you people are putting in the form of online education. Although Delhi High Court has agreed to the fact that teaching online is tougher than teaching in real classroom situation. You people know it well. When the curfew was announced all of a sudden on 23rd of March, we were advised and ordered by HRD, by CBSE, by the State Education Department that we have to conduct online classes. And though we were not prepared at that time, we took it as a challenge and we learned all those things which we were never aware of. Even I had not heard the name of Zoom app before we came to online teaching platform. I had to learn that. My staff had to learn that. We taught in turn to the parents. Our children also learned that. So we accept that we were not prepared initially for online teaching, but we all improved ourselves by working hard, by taking help of internet, by taking help from our colleagues, by learning from internet. And initially there were some issues of parents regarding online teaching. Some parents were not comfortable. You also might be knowing that you might be having parents who are not from very educated background. To take help from those parents to teach, especially the little ones, was again a tough task for us, the teachers. Parents of my schools, they admit this thing. They say openly that we have learned a lot during lockdown from the teachers. I really must say कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया और इतने अच्छे से teachers ने parents को सिखाया है that after lockdown will be over, I believe even Alil sir will be getting many CVs from the mothers कि हमें kindergarten में रख लो, we are efficient now, we are trained. बहुत से schools ऐसे हैं जिनकी collection पे ही सब कुछ depend करता है. जो एक ये मैसेज फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि स्कूल बहुत कमाते हैं, बहुत लूटते हैं, एक बहुत बड़ी मिथ है बहुत से ऐसे स्कूल्स के लिए जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चलाते हैं. प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्टेंस में क्यों आए थे? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो पूरी नहीं कर पाए, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी नहीं कर पाई. तो हम लोग सरकार की कमी को पूरा कर रहे हैं. उसके लिए एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए हमें या ऐसे ताने मिलने चाहिए?
नाउ कमिंग टू द टफ सिचुएशन जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। फीस नहीं आ रही, स्कूल्स के पास फंड्स की शॉर्टेज है। आई डू बिलीव आपके स्कूल में भी यही प्रॉब्लम होगी, और उस वजह से many schools are not in a position to pay the staff also. My teachers have such good relationship with the parents. Around for 5 years, जितना देर मैंने अपनी इस टीम को लीड किया है, मैंने उनको एक ही चीज सिखाई है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। पेरेंट्स को हमने हमेशा यही फीलिंग दी है दैट वी आर पार्ट ऑफ फैमिली। आप हमारी फैमिली का पार्ट हो, हम आपकी फैमिली, हम मिलके सब लोग एक ही हैं, डीए फैमिली हैं। सिर्फ दो चीजें काम कर रही हैं आज। जो डिफरेंस है, जिन स्कूल्स को फीस मिल रही है और जिन स्कूल्स को फीस नहीं मिल रही है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो यही है। पहला, रिलेशनशिप्स, जिनके रिलेशन स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, वो पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज है ऑनलाइन एजुकेशन। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत सीरियसली लिया है, उनके पेरेंट्स भी फीस दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन डे 1 से बहुत सीरियसली चल रही है। व्हाट वी डिड, पहले दिन से हमने टाइम टेबल जैसा स्कूल का था वैसा ही डिवाइड किया पीरियड वाइज। अब वो 8 पीरियड्स में टीचर क्या करते हैं, दे एक्चुअली रिमेन प्रेजेंट एज दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, एंड दे टीच द स्टूडेंट्स, एंड द ग्रुप्स आर ओपन टू ऑल। जैसे क्लास में बच्चा आपसे इंटरेक्ट करता है, क्वेश्चन आंसर्स करता है, वैसे ही ग्रुप में हमारे टीचर्स से बच्चा क्वेश्चन आंसर्स करता है और टीचर्स रिप्लाई भी करते हैं उसका। तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई और हम लोगों ने उनका सोल्यूशन खोजा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि व्हाट्सएप पे जो वीडियोस हम लोग भेजना चाह रहे हैं, वो वीडियोस एट द सेम टाइम क्लास में बच्चे एक्सेस कैसे करेंगे, बिकॉज डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, इंटरनेट की स्पीड सबकी एक जैसी नहीं है। 35 मिनट का पीरियड है, 35 मिनट में अगर 10-15 मिनट बच्चे को वीडियो डाउनलोड करने में ही लग गए तो टीचर टीच कैसे करेगा उसको। तो वी केम टू अ सॉल्यूशन कि हम लोग एक दिन पहले एडवांस में जो कल पढ़ाना है, टीचर्स उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पूरा लेसन प्लान बनाते हैं, दे शेयर द प्लान विद मी। उसके बाद जो भी उनको रिसोर्स यूज करना है, चाहे ऑडियो रिसोर्स यूज करना है, चाहे वीडियो करना है, चाहे पीपीटी करना है, चाहे पीडीएफ करना है, एक दिन पहले दे शेयर विद मी एंड द कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग अप्रूव करते हैं, फिर वो उस एक रिसोर्स को एक दिन पहले पेरेंट्स को भेज देते हैं। सपोज कल 8 पीरियड्स लगने हैं, 8 पीरियड्स में से 4 टीचर्स को वीडियो यूज करना है पढ़ाने के लिए, वो चारों टीचर्स अपना वीडियो आज अप्रूवल लेके आज डाल देंगे पेरेंट्स को, ताकि पहले से उसको बच्चे और पेरेंट्स डाउनलोड करके रख लें। जब एक बार डाउनलोडेड होगा फिर तो सिंपल प्ले ही करना है, और जब उसको प्ले करेंगे तो पीरियड में भी प्ले करेंगे, इंस्टेंटली चलेगा। और इंस्टेंटली चलेगा तो इमीडिएटली जो भी टीचर्स उसका रेफरेंस देना चाहते हैं, बच्चे भी और टीचर्स भी सेम पॉइंट पे अपना रेफरेंस दे पाएंगे। टीचिंग और लर्निंग एक पेज पे हो जाएगी। अब उसके बाद बिकॉज मटेरियल इज ऑलरेडी देयर विद द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, व्हाट डू टीचर्स डू, दे सिंपली स्विच बिटवीन द ग्रुप्स। हर क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, उस हर ग्रुप में सभी टीचर्स हैं उस क्लास को जो पढ़ाते हैं, एंड ऑल आर एडमिन्स, सभी के सभी। तो मॉर्निंग क्लास टीचर बिगिन करता है विद अटेंडेंस, उसके बाद फर्स्ट पीरियड का टीचर सपोज 6th क्लास में आ गया, उसके बाद उसका नेक्स्ट पीरियड 7th क्लास में है, तो 6th क्लास में 7th क्लास में चला जाएगा, वहां पे टीच करेगा। इसी तरह से सारे टीचर स्विच ओवर करते हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से आया कि हमारा एक चीज कि हमारे मोबाइल में स्पेस की कमी हो रही है, स्टोरेज की कमी हो रही है, बिकॉज बहुत सारी फोटोज और बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड होते जा रहे हैं। तो हमने पेरेंट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसका कि आपके मोबाइल में सेटिंग है एक व्हाट्सएप में, जिसमें जाके ऑटो डाउनलोड को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो आपकी ना तो फोटो ना वीडियो कोई भी ऑटो डाउनलोड नहीं होगा जब तक आप उसको डाउनलोड करना नहीं चाहते। तो सिर्फ टीचर का आपको डाउनलोड करना है, बच्चों का, बाकी बच्चों का आपको डाउनलोड ही नहीं करना है। तो वो स्पेस वाली प्रॉब्लम हमने उनकी खत्म की, स्टोरेज स्पेस की प्रॉब्लम खत्म होगी, बिकॉज सिर्फ टीचर का वो डाउनलोड कर रहे थे जो भी ऑडियो वीडियो या पीपीटी वगैरह थी।
फिर प्रॉब्लम वही, जैसे मैंने बोला, नोटिफिकेशन की आई, बहुत से नोटिफिकेशन फेस करने पड़ते हैं। हमने पेरेंट्स को टीच किया कि आपको म्यूट करना है नोटिफिकेशंस को। जब आप म्यूट कर दोगे तो वो टू 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 नहीं बजेगा आपका, एटलीस्ट आपको वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आती रहेंगी नोटिफिकेशन बट आपको साउंड ट्रबल नहीं होगा। वो भी हमने उनको सिखाया। देन देयर वाज अ प्रॉब्लम कि डिवाइस एक है, बच्चे ज्यादा हैं, एक ही घर में ब्रदर सिस्टर्स पढ़ते हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम आई कि सर एक ही मोबाइल पे हम लोग कैसे दो बच्चों को पढ़ाएं। हमने उनकी प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया। वी टॉट देम कि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में ही टीचर का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी टीचर भेज रहा है और जो भी इंटरेक्शन बाकी बच्चों के साथ कर रहा है वो ग्रुप में ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके पास। आप एक बच्चे की उसकी आप लाइव अटेंड करवा लीजिए, दूसरे बच्चे का जैसे ही क्लासेस ओवर हो जाएंगी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपको जब भी टाइम मिलेगा आप उसकी क्लास के ग्रुप को स्क्रॉल डाउन करके ऊपर देख लेना, टीचर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कैसे कैसे पढ़ाया है, बाकी बच्चों ने क्या रिस्पांस दिया, क्या क्वेरीज थी, उनके क्या सॉल्यूशंस मिले। अगर आप उसकी हेल्प से बच्चे को गाइड कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप टीचर को मैसेज भेज के भी पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनल विंडो में, या कॉल भी कर सकते हैं। टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। यहां तक भी टीचर्स ने हार्डवर्क किया है। शामी सुबह वो शुरू होते हैं 9 बजे और रात को 9 बजे तक वो मेहनत करते हैं इसी पर ही, पेरेंट्स की क्वेरीज को सेटिस्फाई करने में, ऑनलाइन एजुकेशन को सक्सेसफुली इम्पार्ट करने में। एंड आई ऑलवेज सैल्यूट माय टीचर्स जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है। और उसके बाद वो सेल्फ ग्रूमिंग भी करते हैं, वो खुद से नेट सर्च करते हैं, सारा कंटेंट ढूंढते हैं या बनाते हैं। मेरी तरफ से मेरे टीचर्स को ये क्लियर एडवाइस थी कि अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करोगे, इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो भी तो किसी इंसान ने बनाए होंगे, किसी और टीचर ने बनाए होंगे। आप उनका कंटेंट यूज करोगे तो वो पर्सनल टच नहीं आएगा कभी भी आपके बच्चों के लिए, जो आप अपना कंटेंट बना के भेजोगे तब आएगा। एक नर्सरी और एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी बोलता है मम्मा मेरे टीचर, वो देखो मेरे टीचर वो पढ़ा रहे हैं, मम्मा वो एक्शन देखो मेरे टीचर ने एक्शन किया, मैंने भी ये करना है। अगर उसको अपना टीचर नहीं दिखता ना, वहां पे कोई और दिखता है थर्ड पर्सन, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं होता। और एक मैसेज पेरेंट्स में ये चला जाता है कि ये खुद तो कर नहीं सकते, हमें कहते हैं आप करो। सपोज अगर मैं किसी साइंस एक्सपेरिमेंट की बात करूं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हमने यूट्यूब पे देख लिया वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, हमने खुद नहीं करके बनाया अपना वीडियो, हमने वो यूट्यूब वाला लिंक ही फॉरवर्ड कर दिया और बच्चों को बोल दिया आप करो। बच्चे के मन में एक ये फीलिंग आ जाती है टीचर खुद तो कर नहीं सकता, मुझे कह रहा है आप करो और इसका वीडियो भी बना के भेजो मुझे। तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट उस चीज का पड़ जाता है। बीइंग टीचर्स वी ऑलवेज एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू डू व्हाट वी कैन डू। जो हम नहीं कर सकते ना, वो हम बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चे करेंगे। वी आर द रोल मॉडल्स, हमें देख के बच्चे सीखते हैं। और अगर हम कर पा रहे हैं किसी चीज को, बच्चे हंस के करते हैं कि अगर मेरे टीचर ने परफॉर्म कर दिया तो मुझे भी करके दिखाना है। तो दिस इज all about the teaching, the efforts, kind of efforts we have put in। इतना सीरियस एफर्ट्स के बाद आज वो स्टेज है कि अराउंड 60% से ज्यादा कलेक्शन है फीस की मेरे पर्टिकुलर स्कूल में, और पेरेंट्स ने अभी तक डिनाई नहीं किया है बाकी फीस के लिए भी। तो हमें, लाइक वी से इन इंग्लिश, वी हैव टू ब्लो आवर ट्रम्पेट। जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत को हमें जतलाना भी है, क्योंकि बाकी सारी की सारी दुनिया उसे गलत प्रूव करने पे लगी हुई है। मैक्सिमम लोग जो फीस नहीं देना चाहते हैं वो कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग ड्रामा है, नौटंकी कर रहे हैं स्कूल, फीस लेनी है इसलिए कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसको आप सबको जतलाओ भी कि इट इज एक्चुअली नॉट इजी। हाई कोर्ट जो बोल रही है कि ऑनलाइन टीचिंग मुश्किल है, वाकई में मुश्किल है। और अगर नहीं है तो प्लीज आइए मैदान में, 2 दिन क्लास लेकर देखिए, 2 दिन वीडियो बनाकर देखिए, पीपीटीज बनाकर देखिए, जूम पे सेशन लेकर देखिए, तो आपको पता चलेगा। बिकॉज ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ सैलरीज, it is tough situation, but only tough people survive in tough situations।
जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और हिम्मत और हौसला छोड़ देते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर हमने अच्छे दिन साथ में देखे हैं तो बुरे दिन भी साथ में देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ आर्मी। आर्मी को टफ टाइम्स के लिए तैयार किया जाता है, बैटल के लिए, और उनसे बड़ा बलिदान और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनका बलिदान सीधा जान का बलिदान होता है। जब तक बैटल नहीं होती, आर्मी पर्सनल सेफ होते हैं, उनकी जान पे आंच नहीं आती, सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। बट दिस इज नॉट व्हाट दे आर हायर्ड फॉर। वो ये नहीं कह सकते कि जब लड़ाई लग गई है तो अब हम साथ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी जान पे खतरा आ गया। उस टाइम पे वो हंसते हंसते अपने देश के साथ खड़े होते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वी आर नॉट लेस देन सोल्जर्स। हम लोगों ने भी उसी लेवल पे जाके मेहनत की हुई है अपने स्कूल को खड़ा करने के लिए। आज जब स्कूल मुसीबत में आ गए हैं, जब दुनिया अगेंस्ट खड़ी हो रही है, तो हमें दो चॉइसेस हैं। क्या हम भी उनके जैसे बन जाएं, या फिर अपने इस स्कूल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, जिसने हमें रोजगार दिया उस टाइम पे जब हमें जरूरत थी। मैं एक चीज बहुत क्लियरली जानता हूं कि किसी भी स्कूल में जब कोई अपॉइंटमेंट होती है, वो म्यूचुअल कंसेंट से होती है। जो स्कूल ऑफर कर सकता है, वो स्कूल बताता है स्टाफ को कि दिस इज व्हाट आई कैन पे। उसके बाद स्टाफ अग्री करता है उस चीज पे कि ठीक है, मुझे इतना काफी है, मैंने अपनी सारी बाकी ऑप्शंस टटोल ली हैं और आपका ऑफर मेरे लिए बेस्ट ऑफर है, सो आई विल ज्वाइन यू। जिस म्यूचुअल कंसेंट की बात मैं जब कर रहा हूं, तो वी शुड थैंक आवर स्कूल्स कि उन्होंने हमें उस टाइम पे जॉब ऑफर की जब हमें उनके जितनी बेटर अपॉर्चुनिटी और नहीं मिल रही थी। जब भी हम जॉब ज्वाइन करते हैं, वी मेक द बेस्ट बार्गेन एज पर आवर पोटेंशियल, तभी हम ज्वाइन करते हैं। तो वो स्कूल जिसने उस टाइम पे हमारी हेल्प की जब हमें जॉब चाहिए थी और हमें जॉब दी, क्या उस स्कूल का इस मुसीबत की घड़ी में आज साथ छोड़ दें हम लोग? दिस इज अ क्वेश्चन विच एवरीबडी शुड आस्क देमसेल्व्स। मुश्किल समय है, आई नो। हो सकता है कुछ स्कूल्स सैलरीज कट करके दें क्योंकि उनके पास है ही नहीं है। हो सकता है कुछ स्कूल्स दे भी ना पाए क्योंकि मार्च की या अप्रैल की सैलरी देने के बाद शायद उनके पास फंड्स खत्म हो गए। अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं इस टाइम पे? मेंटली वी हैव टू think very deeply and decide, are we going to remain in teaching sector forever or we have some different plans? हम लोग टीचर क्यों बने थे? क्या सिर्फ पैसा कमाना मकसद था या एजुकेशन इम्पार्ट करना भी था? सिर्फ पैसा कमाना होता तो साधन और भी हो सकते थे, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जज्बा था फॉर टीचिंग कि हम पढ़ाएंगे, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है। देन वी ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन। अब जो वर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये वर्स्ट टाइम कभी भी आ सकता है। आज सब स्कूलों पे आ गया है, बट हिस्ट्री में भी ऐसे टाइम हुए हैं जब किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में वो वर्स्ट टाइम्स आए हैं। इवन वर्ल्ड लेवल पे वर्स्ट टाइम्स आए हैं। जब भी रिसेशन हुई है, जब भी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, जब भी कोई पैंडेमिक्स हुए हैं, लोगों के लिए अर्निंग का संकट आया है। तो उस संकट में हमें टूटना है या मजबूत होके उबरना है, वो हमें खुद को डिसाइड करना है। लाइक आई सेड, ये टाइम बीतेगा, गुजर जाएगा, बट उस टाइम के गुजरने तक क्या हम अपने स्कूल के साथ खड़े रह सकते हैं? ये एक एक्सपेक्टेशन रख के कि हमारा स्कूल जिसने हमारा
पहले भी मुसीबत की घड़ी में साथ दिया था, अभी भी हमारा साथ देगा और लॉन्ग टर्म तक निभाएगा भी। और हमें भी, हमसे भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही है स्कूल की, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत से स्कूल्स शट डाउन हो रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में, आप लोग भी शायद पढ़ते होंगे। बहुत से स्कूल्स को स्टाफ कट डाउन करना पड़ रहा है। तो मेरे नजरिए में अगर हमें स्कूल सिस्टम के साथ रहना है तो इट इज ऑलवेज बेटर देन लूजिंग अ जॉब टू बी विद द स्कूल इन दिस टाइम ऑफ टर्मोइल, मुश्किल की घड़ी में साथ निभाते हुए, हंसते खेलते मिलजुल कर एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, जितना ज्यादा से ज्यादा समय सीरियस टीचिंग करते हुए निकाल पाएंगे, दैट विल ऑलवेज बी बेटर। आई विल नेवर सजेस्ट कि ऑनलाइन टीचिंग बंद कर दो। अगर आप पढ़ाना बंद कर दोगे, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ फीस नहीं आ रही इसलिए पढ़ाना बंद कर देते हैं। अगर आप पढ़ाना बंद कर दोगे तो हम में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा जो कह रहे हैं नो स्कूल नो फी। और जो गैप पड़ रहा है, ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो कभी फिल नहीं हो पाएगा। स्कूल्स और पेरेंट्स दो ऐसे किनारों पे खड़े हो जाएंगे जहां पे वो कभी मिल नहीं पाएंगे फ्यूचर में। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट के प्रति कितना वफादार हैं इस समय पे, और पेरेंट्स के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं इस समय पे। ये दो चीजें हैं जो स्कूल्स और पेरेंट्स को जोड़ के रख पाएंगी। तो बीइंग एम्प्लॉइज, आई नो टाइम्स आर टफ, बट टफ टाइम में गुजारा कैसे करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। हमें अपने आप को वर्स्ट के लिए तैयार करना पड़ता है। जब भी कभी हमें लगे कि हम बहुत मुश्किल की घड़ी में, बहुत मुसीबत की घड़ी में हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि वर्स्ट मींस सबसे बुरे से बुरा इस टाइम पे मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं अपनी बात करूं तो बुरे से बुरा ये हो सकता है मेरी जॉब जा सकती है, क्योंकि हो सकता है स्कूल के पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, वो बोले कि ओके गुप्ता जी टाटा बाय बाय। तो क्या मुझे और जॉब मिल जाएगी इस टाइम पे सेम प्रोफेशन में? आई डोंट थिंक सो। जब तक स्कूल्स रीओपन नहीं हो रहे, मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइम पे दूसरी जॉब मिलेगी। तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे कोई और प्रोफेशन चुनना है, क्या मुझे दिहाड़ियाँ लगानी है, या मैं किसी और प्रोफेशन के लिए बनाऊं। मैं तो नहीं बनाऊं, मेरे पास यही है, टीचिंग है और ये प्रिंसिपलशिप का एक्सपीरियंस है। मुश्किल है शायद मैं कुछ और कर पाऊं। तो फिर मेरी अर्निंग्स क्या रहेंगी? ऑलमोस्ट जीरो। वो वर्स्ट है जो मैं सोच रहा हूं। अब अगर मैंने अपने आप को उस वर्स्ट के लिए तैयार कर लिया कि उस हालात में मैं कैसे जीऊंगा, मैं अपने खर्चे कट डाउन करूंगा, बहुत जरूरी खर्चे सिर्फ करूंगा, जो भी थोड़ी बहुत सेविंग है उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बचा के रखने की कोशिश करूंगा। जब मैंने अपने आप को उस वर्स्ट के लिए तैयार कर लिया और फिर मैं सोचूं कि नहीं, वर्स्ट के लिए तो रेडी हो ही चुका हूं, नाउ लेट मी स्टैंड विद द स्कूल, मैं पढ़ाता हूं, जैसे स्कूल मुझे बोल रहा है मैं वैसे चलता हूं। सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी, महीने बाद, 2 महीने बाद पेरेंट्स फीस देना शुरू कर देंगे, कलेक्शन आएगी, स्कूल हमें सैलरीज भी देना शुरू करेगा। तो ये वर्स्ट से वो टाइम बेहतर होगा कि नहीं होगा? जो वर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं वो अगर एक बार आ गया, वो फॉरएवर के लिए होगा। साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। बट जिस बेटर टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जो वर्स्ट से थोड़ा बेटर होगा, वो हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। तो हमें अपने आप को ये चीज समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम वेयर वी नीड टू स्टैंड विद द स्कूल्स फर्मली।